टॉपिक है इस पे ये Hi guys, welcome back to the Political Science lecture series on Near Peer, and in this lecture we're going to cover local government system, and the first part of this three-part lecture series on local government is going to cover its significance and the framework of local government system. So we're going to discuss this topic, and इस पे ये पास पेपर में सवाल भी आ चुका है. What is the significance of local government system in a country? Discuss the reasons of repeated failures of the efforts in Pakistan to establish a stable local government. तो पहला पार्ट जो है इस सवाल का उसमें एक जनरल डिस्कशन है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की सिग्निफिकेंस के ऊपर, जिसमें हम बेसिकली उसके फ़ायदे जो हैं लोकल गवर्नमेंट के वो डिस्कस करेंगे. और सेकंड पार्ट जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है. तो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, जिसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स भी कवर होंगे और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट का और हिस्टोरिकली वो स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो इन दिस first part of this lecture we're going to cover the principles that govern local government system, which has two principles: the principle of subsidiarity and principle of electoral legitimacy. The second is administrative decentralization, जो है उसके 5 levels होते हैं. So the lowest is deconcentration, then is delegation, then divestment, then diffusion, and then devolution. And then rationale and advantages. So basically ये जो principles हैं और ये जो rationale and advantages हैं, these essentially cover the significance aspect, कि क्या significance है, उसका क्या फ़ायदे हैं local government system के. और ये basically मज़ीद डिटेल में उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि किस किस लेवल पे किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन एंड किस हद तक ऑटोनॉमी दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर. So local government is a management model of democratic governance. The concept of local governance has emerged due to the expansion of state functions and duties, and in order to consolidate citizens' rights to and participation in the management of their affairs. This means that citizens conduct their affairs by themselves within a particular local authority. तो लोगों को डेमोक्रेटिक ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उस पे उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ग्रास रूट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का. A local government is a form of public administration which, in a majority of contexts, exists as the lowest tier of administration within a given state. तो ये सबसे lowest tier होता है administration का, governance का, and the term is used in contrast with offices at state level, national level पे, which are referred to as the central government, national government or federal government, and provincial or state government. In federal states, local governments generally comprises the third tier or sometimes the fourth tier of government, क्योंकि federal states में सबसे पहले federal government आएगी, फिर independent autonomous constituent units की, यानी जैसे हमारी provincial governments हैं और इंडिया में state governments हैं, US के अंदर state governments हैं, वो आती हैं, और फिर तीसरे tier पे आपकी local government आती है. In United States, local government usually occupies the second or third tier of government, often with greater powers than higher levels of administrative divisions. तो वहाँ पर local governments को बहुत ज़्यादा powers हैं. जैसे न्यूयॉर्क का mayor is considered to be one of the most important political offices in the United States. Michael Bloomberg, who was the presidential candidate in the 2020 electoral cycle, was also used to be the mayor of New York City. So that's how important it is. इसी तरह में यूके में भी नज़र आता है. लंदन में मेयर सादिक खान has earned worldwide fame, obviously because of his background of being from Pakistani descent, but also because of the fact that mayor of London is a very important position, because of the fact that these offices in a lot of developed countries have a lot of authority and autonomy. Now, what are the principles that govern local government? जो फाउंडेशन है, किन प्रिंसिपल किन उसूलों के ऊपर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम खड़ा है, उसमें जो पहला उसूल है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. सब्सिडियरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर मसला शुरू होता है या जिस जगह पर मसला एग्जिस्ट करता है उसकी रेजोल्यूशन भी उसी जगह पर होनी चाहिए. सो जिस टीयर पे कोई इशू एग्जिस्ट करता है उस टीयर पे उसका हल होना चाहिए. चूंकि जो लोकल लेवल के या म्यूनिसिपल लेवल के मसाइल हैं उनका ओरिजिन या उसके जो इफेक्टिव्स होते हैं वो लोकल लेवल पे होते हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी उसी लोकल टीयर पे होना चाहिए. ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के तहत लोकल गवर्नमेंट्स इस फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करती हैं. इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड्स that social and political issues should be dealt with at the most immediate or local level that is consistent with the resolution. ठीक है, hence the problem needs to be resolved where it originally originates from. Then the second principle is the principle of electoral legitimacy,
कि मसाइल का हल करने के लिए लोगों को इलेक्शंस लड़ने चाहिए ताकि वो लोग नुमाइंदगी कर सकें जो लोगों की पॉपुलर सपोर्ट से आते हैं। सो लोगों के मसाइल का हल जो है वो लोगों के नुमाइंदे ही कर सकते हैं, जो जनरली एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का प्रिंसिपल है। लोकल गवर्नेंस रिक्वायर्स मेंबर्स ऑफ लोकल काउंसिल्स टू बी इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी, who themselves are in the best place to know their needs, in contrast to other forms of public administration characterized by subordination to central authority. कि जैसे एक bureaucratic governance है, where bureaucrats are not elected at local level and they're answerable to higher authority like provincial governments or their provincial bureaucracy or federal government or federal bureaucracy. तो लोकल लेवल पे लोकल काउंसिल्स जो हैं वो अपनी डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंसी को, पॉपुलेशन को आंसरेबल होते हैं। देन वी हैव tiers of administrative decentralization, या आप इसे कह सकते हैं grades of administrative decentralization. So इससे मुराद ये है कि जो हम सबसे पहला इसमें कवर करेंगे deconcentration, उसमें सबसे कम ऑटोनॉमी दी जाती है लोकल लेवल पे। सो ये ग्रेड्स हैं कि किस हद तक ऑटोनॉमी आप देते हो लोकल गवर्नमेंट्स को। सो डीकॉन्सेंट्रेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर की डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे कम फॉर्म है, ये लोएस्ट फॉर्म है, and is used most frequently in unitary states for obvious reasons, because unitary states generally concentrate करती हैं पावर एट द सेंटर और नीचे पावर कम देती हैं। तो ऐसी यूनिटरी रियासतों के अंदर अमूमी तौर पर जब लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं तो वहाँ पे डीकॉन्सेंट्रेशन का मॉडल यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे कम ऑटोनॉमी, कंसिडरेबली लो ऑटोनॉमी दी जाती है और पावर्स दी जाती हैं लोकल काउंसिल्स को। It redistributes decision-making authority and financial and management responsibilities among different levels of central government. It mainly, क्योंकि unitary system की यहाँ पर basically बात हो रही है कि unitary systems के अंदर ज़्यादातर central government के पास होती है. It can merely shift responsibilities from central government officials in the capital city to those working in provinces and local districts. The central government only transfers some of its responsibilities to lowest units within its jurisdiction. तो deconcentration के मॉडल के अंदर जो ज़्यादातर यूनिटरी स्टेट्स में प्रैक्टिस होता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चंद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑटोनॉमी जो हैं वो लोकल यूनिट्स को देती हैं अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर। द सेकेंड, यानी कि डीकॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोनॉमी वाला मॉडल है डेलीगेशन का। इट इज़ अ मोर एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ दैट डिसेंट्रलाइजेशन। थ्रू डेलीगेशन, सेंट्रल एंड सब्सिक्वेंटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स transfer responsibility for decision making and administration of public functions to semi-autonomous local governments, not wholly controlled by the provincial government in federation and central government in unitary states, but ultimately accountable to it. इस मॉडल के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर लोकल काउंसिल्स को दी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कंप्लीटली ऑटोनमस नहीं होती, सेमी ऑटोनमस होती हैं, बिकॉज दे आर स्टिल accountable to the provincial governments in federations and central governments in unitary states. तो कंट्रोल उनको नहीं कर रहे होते लेकिन अकाउंटेबल होते हैं उसके अंदर। आप पाकिस्तान कैन बी कंसिडर्ड मोर और लेस, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, अ मॉडल जो कि डेलीगेशन के प्रिंसिपल पे चल रहा है, कि जहाँ पर लोकल काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं, जब लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं और वो उनको फंड्स भी दिए जाते हैं, उनको बजट्स भी दिए जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो अकाउंटेबल एक टेक्निकली उनको हो जाती हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो टेक्निकली कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वी आर समवेयर बिटवीन डीकॉन्सेंट्रेशन एंड डेलीगेशन। समटाइम्स इट कैन बी कैरेक्टराइज एज अ डीकॉन्सेंट्रेशन मॉडल एंड समटाइम्स डेलीगेशन, क्योंकि हम आगे देखेंगे और जब हम मसले आइडेंटिफाई करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के क्या इशूज़ हैं पाकिस्तान में कि वो फेल होती हैं, उसमें मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है लोकल गवर्नमेंट्स को फ्रॉम प्रोविंशियल लेवल्स। थर्ड इज़ द मॉडल ऑफ डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट के अंदर जो इससे ज़्यादा ऑटोनॉमी देता है, इट इंटेल्स डिस्पोजिंग ऑफ सम फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन फेडरेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी स्टेट्स सच एज आउटसोर्सिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कुछ फंक्शंस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर या सेंट्रल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर कुछ फंक्शंस दे देती है लोकल काउंसिल्स को, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फंक्शन कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डील करेगी, हर म्यूनिसिपैलिटी खुद डील करेगी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑलराइट। इससे ज़्यादा ऑटोनॉमी वाला मॉडल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर पावर एट द सेंटर और प्रोविंस इज डिफ्यूज्ड मोर ब्रॉडली बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एट ऑल लेवल्स। तो इसमें बेसिकली जिस तरह फेडरेशन के मॉडल में कॉन्स्टिट्यूशनली डिलिनेट कर दिया जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान फेडरेशंस के अंदर। उसी तरह डिफ्यूजन के मॉडल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स
और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दी जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट्स को एक लीगली तौर पर, स्टैट्यूटोरी तौर पर ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा पावर्स मिलती है लोकल गवर्नमेंट को, वो वाली डिसेंट्रलाइजेशन जो हाईएस्ट ग्रेड पे ऑपरेट करती है, वो है डेवोल्यूशन का मॉडल। इन डेवोल्यूशंस गवर्नमेंट्स डिवॉल्व फंक्शंस, दे ट्रांसफर अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, दे ट्रांसफर फाइनेंशियल autonomy and management powers to quasi autonomous units of local government। तो यानी फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट होंगी, डिसीजन मेकिंग भी उनकी इंडिपेंडेंट होगी और मैनेजमेंट ऑफ दोज फंक्शंस भी इंडिपेंडेंट होंगी। तो वो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी पे ऑपरेट करती हैं। Devolution usually transfers responsibilities for services to municipalities that elect their own mayors and councils, raise their own revenues. This is very important that they have the ability to raise their own revenues through how, through के अपने local taxes लगा सकते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज अपनी jurisdictions में प्रॉपर्टी टैक्सेस लगा सकती हैं, टोल टैक्सेस लगा सकते हैं, कंजेशन टैक्सेस लगा सकती हैं, बिल्डिंग के ऊपर रेगुलेशंस और टैक्सेस लगा सकती हैं, जोनिंग लॉज पे उनका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियली ऑटोनमस होना भी बहुत जरूरी है। और ओन सोर्स रेवेन्यू अगर लोकल गवर्नमेंट्स का एग्जिस्ट करता है तो ही वो सबसे ज्यादा उनके पास ऑटोनॉमी होगी। एंड हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लाइकवाइज वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी खुद कर सकती हैं, तो इनका ओन सोर्स रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। In a devolved system, local governments have clear and legally recognized geographical boundaries over which they exercise authority and within which they perform public functions. It is this type of administrative decentralization that underlies most political decentralization. तो जब हम decentralization की बात करते हैं, local governments की बात करते हैं, तो generally we are aiming and aspiring towards this model of system. जेन्युइन डेवोल्यूशन जहां पर हो। न्यूयॉर्क सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो उसका मेयर का निज़ाम है, या जो लंदन का है, उसमें जनरली ये डेवोल्यूशन का मॉडल फॉलो होता है। हम अभी बहुत पीछे हैं। हम जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी जो एस्पिरेशन है वो इस लेवल तक पहुंचने की है, मगर हम अभी तक डीकॉन्सेंट्रेशन से तकरीबन आगे नहीं बढ़े। अब आ गया, जब हम ये सिग्निफिकेंस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें वो पहले दो प्रिंसिपल्स आ गए जो हमने डिस्कस किए, और उसके बाद उसमें ये वाली चीज़ें आ गई कि क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं लोकल गवर्नमेंट के। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत करता है। बिकॉज जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, दे आर द फंडामेंटल पिलर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द सोसाइटी एट लोकल लेवल। तो ओवरऑल पॉलिटिकल प्रोसेस जो आपका वो मजबूत होता है। दूसरा ये कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। It is that foundation upon which the whole edifice of democracy ultimately thrives, because local government is a system based on the involvement of the largest number of citizens in solving the problem faced by citizens, thus applying democracy at the lowest level. क्योंकि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं तो दे आर जनरली लेस एक्सेसिबल टू यू। ठीक है, दे आर ऑल्सो लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन्स एट प्रोविंशियल लेवल्स या एट फेडरल लेवल। लेकिन जो लोगों की खुद कंट्रीब्यूशन है थ्रू इलेक्शंस, थ्रू रीचिंग आउट टू देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमेशा लोकल लेवल पर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसलिए एक बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर होता है। इट मेक्स द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू सिटीजंस। दूसरी बात एक बड़ी अहम है कि लोकल लोग जो हैं, लोकल सिटीजंस आर मोस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एंड प्रायोरिटीज। आपको अपने म्यूनिसिपैलिटी के, अपने नेबरहुड के, अपने कम्युनिटी के मसाइल का खुद सबसे ज्यादा बेहतर अंदाजा होता है, ना कि वो उन लोगों को जो फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बैठे हैं। दिस ऑब्लिगेट्स द लोकल काउंसिल्स टू कॉन्स्टेंटली फील देयर प्रायोरिटीज, प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड डिजायर्स। ठीक है, और इसके अंदर वो बात आ जाएगी कि किस तरीके से सब्सिडियरिटी वाले कॉन्सेप्ट से अगेन आप रिलेट करें कि चूंकि जिस लेवल पे मसला एग्जिस्ट करता है वहाँ पर लोगों को खुद वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ता है और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को करना पड़ता है, तो वो बेहतर समझ सकते हैं लोगों के मसाइल को। Greater accountability, it is easier for citizens to approach and confront their local representatives that are present within their vicinities rather than politicians who are distant from them due to their work at provincial and federal legislatures। तो आपको accessibility जो है वो मिलती है अपने representatives की local level पे। Then it is a breeding ground for political leaders. Local government elections allow young and dynamic individuals to launch their political careers at the lowest level and then making their way to the top, learning as they move in the political process. This creates a conducive climate for producing more responsive, learned and deserving politicians to reach the decision making echelons. तो आपको एक लोअर लेवल पे, छोटे लेवल पे मसाइल हल करते करते आप पॉलिटिकल लैडर पे ऊपर चल सकते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा
जो डेवलप ममालिक हैं उनमें ये प्रैक्टिस नज़र आती है. इवन इन चाइना वी सी दैट द टॉप लीडर्स बेसिकली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट्स, और वो वहाँ से काम करते हैं, वहाँ डिलीवर करते हैं, देन दे राइज टू पार्टी रैंक्स, इंटरनल पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे आते हैं. फिर आप लोकल लेवल पे गलती करते हो, उससे सीखते हो, उसका नुकसान कम होता है. लेकिन आप डायरेक्टली अगर ऊपर से लॉन्च हो रहे हो प्रोविंशियल लेवल पर या फेडरल लेवल पर, तो उधर आपको गलती करने का नुकसान लोगों को ज़्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से पॉलिटिकल करियर लॉन्च करने का. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये ऐड कर सकते हैं आप कि 21st सेंचुरी जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं. उसकी वजह क्या है कि ये जो मॉडल था कि प्रोविंशियल लेवल से कंट्रोल किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे सारी डिसीजन मेकिंग की जाए, ये दिस इज़ सो 20th सेंचुरी. 21वीं सदी के बहुत डिफरेंट मसाइल हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं. जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान. पाकिस्तान स्पेसिफिक बात की जाए तो पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट इन साउथ एशिया. ठीक है. और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, यानी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल सर्विसेज अच्छी नहीं है, म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं है, बहुत कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं लोकल लेवल पे. तो इतने 21वीं सदी के मसाइल के हल के लिए हम 19वीं और 20वीं सदी का जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है या 19वीं और 20वीं सदी का जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसको यूज़ करके 21वीं सदी के मसाइल को हल नहीं कर सकते. क्योंकि आपका जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है दैट वाज डिज़ाइन थ्रू कॉलोनियल टाइम्स to cater to more rural population, land revenue collection, land management. आपका इवन पुलिसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो थाना बेस्ड जो कल्चर है कि पुलिस स्टेशन ओरिएंटेड पुलिसिंग करना, वो भी एक कॉलोनियल टाइम्स में जुरिस्डिक्शन डिवाइड करने के एतबार से था. सिटी लेवल पुलिसिंग और सिटी लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह दुनिया में की जाती है वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती. और वो ये इसीलिए देयर इज अ डेफिसिट बिटवीन दैट आवर कंट्री इज कन्फ्रंटेड विद चैलेंजेस दैट आर 21st century, but we are dealing them with tools and governance structure of 20th century. और इसीलिए 21वीं सदी का मॉडल ये है कि लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन करके लोगों को मौका दिया जाए कि वो खुद अकाउंटेबल इलेक्ट करें लोगों को, और जो लोग अपने मसाइल को सबसे बेहतर समझते हैं वही उसका हल भी करें. अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो आर्टिकल 32 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है. ये इट talks about the promotion of local government institutions. आर्टिकल 140A जो है, जो 18th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, उसमें ये कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट जो होगी लोकल गवर्नमेंट की वो प्रोविंसेस करेंगे. ये आर्टिकल 32 है. promotion of local government institutions. The state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू पेजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन. तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर बात की गई कि हमें एस्पायर करना है टू हैव greater local government institutions, and those local government institutions should have special representation of women, workers and peasants. Their article 140 states, 140A, that each province shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments, and elections to the local government shall be held by the Election Commission of Pakistan. तो constitutionally provinces की ये जिम्मेदारी है कि हर province अपना अपना local government का जो है वो लॉ बनाएगा और उस हिसाब से अपनी पावर्स वहाँ पर डिवॉल्व करेगा. ये 18th अमेंडमेंट में एक कमिटमेंट की गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोडिफाई हो गई है हमारे लॉ के अंदर. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो पार्लियामेंट के एक्ट्स होते हैं उनकी अहमियत होती है. तो सेक्शन 4 ऑफ इलेक्शन, पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 demand the holding of elections within 120 days after the expiry of tenure of local government in a province. के 4 महीनों के अंदर अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के टेन्योर जब मुकम्मल हो तो उसके 4 महीनों के अंदर अंदर उनके नए इलेक्शंस किए जाएं. अब ये एक बहुत बड़ा गैप है पॉलिसी और प्रैक्टिस के अंदर कि पॉलिसी ये कहती है कि 4 महीने के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, मगर पंजाब में 1.5 साल हो गया इलेक्शंस नहीं हुए. KPK में कितने साल, 1 साल से ऊपर हो गया आई थिंक, इलेक्शंस नहीं हुए. तो ये गैप एग्जिस्ट करता है. पाकिस्तान में इस वक्त एज ऑफ येट ऑन 19 सितंबर 2020
there is no local government in any province in Pakistan. The last one was in Sindh, but वो अक्टूबर के एंड पे local governments का tenure मुकम्मल हो गया, and currently there is no functional local governments in any province in the country. Article 10 of the Charter of Democracy, signed by former Prime Ministers Benazir Bhutto and Nawaz Sharif in London 2006, calls for a strong local government system under Article 140A. अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, और समरी की अगर बात करें तो जो सिग्निफिकेंस वाला अगर ये सवाल आता है आपको इसी तरह रिपीट होता है, तो आप ये सिग्निफिकेंस में आएगा और ये सिग्निफिकेंस में आएगा. आप अगर ये सवाल आए तो इसमें इस चीज़ को बेशक शुरू में ले जाएं और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, और फिर आप सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करें, और फिर जब हम ये रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर करेंगे तब आप वो वाली चीज़ें उसमें ऐड कर दें. उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे भी सिर्फ डीकॉन्सेंट्रेशन या डेलीगेशन तक महदूद रहा है सिस्टम इन पाकिस्तान. हमने ये डिस्कस किया था कि एक पास पेपर का सवाल आ चुका है, उसमें ना स्ट्रक्चर पूछा गया है ना हिस्ट्री पूछी गई है, लेकिन ये इस पे भी सवाल आ सकता है कभी ना कभी, तो आपको भी हिस्ट्री और स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए क्योंकि ये सिलेबस का भी हिस्सा है. और कम से कम अगर नहीं भी पूछा जाता तो आप कंटेम्प्रेरी या पुराने स्ट्रक्चर के मसाइल ऑब्वियसली आपको बताने पड़ेंगे, तो ही आप इस सवाल को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कंटेंट रिच बना सकते हैं. सो इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. ये सारे सिस्टम्स डिफरेंट टाइम्स पे आते रहे हैं, इनको मैं आपको ब्रीफली पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर डिटेल में डिस्कस करता हूँ. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसे पहले कि 1959 में बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर आया था 1959, विच वाज अंडर जनरल अयूब खान. उसके बाद 1979 में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में, फिर 2001 में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे, और फिर 2010 में हमारे पास सामने 18वीं तरमीम आती है, और 18वीं तरमीम ये स्टिपुलेट करती है, जैसा हमने 140A के अंदर देखा आर्टिकल, कि अब से जो लोकल गवर्नमेंट्स होंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट्स के लॉज बनाएं और अपने अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं और उनको फंक्शंस डिवॉल्व करें. तो सबसे पहले 2010 के अंदर बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 पास किया. बलोचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट्स का, और उसके तहत फिर इलेक्शंस करवाए गए और वहाँ लोकल गवर्नमेंट्स बनी. 2013 में फिर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया, केपीके की असेंबली ने केपीके लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया, और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ 2013 में. 2019 में दोबारा जब लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो गई पिछली, तो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स दोबारा पास हुए. 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंडर पंजाब में पास हुए, 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट के अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नए 2 एक्ट्स पास हुए, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 एंड पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल एक्ट. सो दिस इज पंजाब विलेज पंचायत नेबरहुड काउंसिल एक्ट 2019. इसके तहत अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये सिस्टम जो नए लोकल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं 2019 में, उससे जो वो भी ऑपरेशनली हमें नज़र नहीं आए, और उसमें ऑपरेशनल हमें अभी चीज़ें होती हुई नहीं, शायद नज़र भी ना आए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्ट चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं कि शायद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट एज ऑफ येट चूंकि पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए इसके तहत अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं हुए, इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस द एक्ट हैज़ बीन पास्ड, तो it remains to be seen that whether it gets implemented in letter and spirit in Punjab or not. सो पाकिस्तान के ऊपर बात की जाए, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के. तो पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है जिसमें 3 टीयर्स एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट के, नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल. लोकल गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 and 140A, एंड ईच प्रोविंस आल्सो हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट enabling legislation and ministries responsible for implementation. लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता है हर प्रोविंस में. Pakistan have had a history of unstable local governments due to a continuous change of political priorities and local government acts. सबसे पहले बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर जो था 1959, 27 अक्टूबर 1958 में, आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग पॉलिटिकल टर्मोइल इन द कंट्री, द आर्मी टुक ओवर एंड जनरल अयूब खान बिकेम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड फील्ड मार्शल. On the first anniversary of his government on 27th October 1959, General Ayub Khan addressed the nation and announced the introduction of a new system of government or basic democracy system
to bring democracy to the doorsteps of the people and to have quote unquote direct participation of the people, managing their affairs through representative bodies not far from their own villages and mohallas. Under the presidential ordinance, a 4-tier hierarchical system of local government system was introduced, namely सबसे लोअर टीयर पे यूनियन काउंसिल्स थी, यूनियन काउंसिल के ऊपर तहसील लेवल पे तहसील काउंसिल्स थी, तहसील काउंसिल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिविजनल काउंसिल थी. तो बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर के तहत ये स्ट्रक्चर बनता है आपका. सबसे नीचे यूनियन काउंसिल थी एंड एवरी यूनियन काउंसिल यूज्ड टू कंप्राइज ऑफ 10 to 15 वार्ड्स. सो बेसिकली एक यूनियन काउंसिल में 5 से 8 विलेजेस आते थे ऑफ अबाउट 8,000 to 5,000 पॉपुलेशन ईच. So 8,000 to 15,000 population each used to comprise. They used to elect a chairman of the union council, one councillor from each ward, basically, और उस councillor को basic democrat कहा जाता था. Each democrat, basic democrat elected by 1,000 to 1,500. 5 to 8 villages जिनकी total population तकरीबन 8,000 से 15,000 बनती थी. तो अगर आप individual level पे जाएं या वार्ड लेवल पर जाएं तो 1,000 से 1,500 लोग एक बेसिक डेमोक्रेट को या एक काउंसलर को यूनियन काउंसिल के अंदर इलेक्ट करते थे. तो बेसिकली सबसे लोअर टियर पे यूनियन काउंसिल आ गया. यूनियन काउंसिल के अंदर जो एक काउंसलर होगा वो 1,000 से 1,500 लोगों से वोट लेकर आया होगा और उसके अंदर यूनियन काउंसिल के अंदर 5 से 8 विलेजेस के लोग काउंसलर्स शामिल होते थे. यूनियन काउंसिल के ऊपर वी हैड तहसील काउंसिल. तहसील काउंसिल के मेंबर्स यूनियन काउंसिल के फिर जितने चेयरमैन होते थे जो उनके अंदर से इलेक्ट होते थे. सो जितने काउंसलर थे यूनियन काउंसिल के दे यूज्ड टू इलेक्ट अ चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स. तो जितने यूनियन काउंसिल्स एक तहसील के नीचे आती थी उनके सारे चेयरमैन तहसील काउंसिल के मेंबर हो जाते थे. और जो तहसील में डिपार्टमेंट्स होते हैं, नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, म्यूनिसिपल सर्विसेज के, CNW के, कंस्ट्रक्शन के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो लोकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं उनके जितने हेड्स हैं वो इसके मेंबर होते थे. एंड दिस यूज्ड टू बी हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर. फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने तहसील काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे, तो तहसील काउंसिल में एक तो सारे चेयरमैन होते थे यूसीज के और उनके बीच में से फिर एक चेयरमैन बनता था तहसील काउंसिल का. वो सारे चेयरमैन जो तहसील लेवल पर फिर होते थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बन जाते थे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते थे वो उसके मेंबर होते थे. एंड दिस वाज हेडेड बाय डेप्यूटी कमिश्नर. और फिर डिविजनल काउंसिल होती थी डिविजनल लेवल पर. उसमें डिविजनल काउंसिल में ये था कि जितने डेप्यूटी कमिश्नर्स थे डिस्ट्रिक्ट्स के वो उसके मेंबर्स होते थे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के जितने वाइस चेयरमैन होते थे वो उसके मेंबर बन जाते थे और जो ऑफिसर्स होते थे डिविजनल लेवल पर वो. एंड इट वाज हेडेड बाय कमिश्नर. एंड यू कैन सी कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है वो सिर्फ यूनियन काउंसिल लेवल पर है, क्योंकि आप सिर्फ यूनियन काउंसिल लेवल पर डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे लोगों को वार्ड्स से. एक ईच बेसिक डेमोक्रेट बेसिकली जहां से वोट हो रहा था. उसके बाद उनके यूनियन काउंसिल के अंदर से जो चेयरमैन होते थे सारे, वो सारे चेयरमैन तहसील काउंसिल के मेंबर बनते थे. वो तहसील काउंसिल के अंदर जितने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे वो आपस में से फिर तहसील काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट करते थे और एक वाइस चेयरमैन इलेक्ट करते थे. चेयरमैन उसके सारे तहसील काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चले जाते थे और वाइस चेयरमैन सारे डिविजनल काउंसिल में. सो बेसिकली यूनियन काउंसिल वो टियर था जो बेसिकली इलेक्टेड टियर था. फिर हमारे सामने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आता है 1979 का अंडर जनरल ज़ियाउल हक. उसमें रूरल अर्बन डिवाइड क्रिएट की गई. रूरल एरियाज़ के अंदर नीचे लेवल पर यूनियन काउंसिल थी और यूनियन काउंसिल के ऊपर ज़िला काउंसिल थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी. और अर्बन एरियाज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन. के जो ज़्यादा पॉपुलेशन और अर्बन एरियाज़ थे वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्रिएट की गई, जैसे लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, इस तरह के एरियाज़ में, मुल्तान. फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनकी आबादी जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से कम लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी से ज़्यादा. फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटीज़ और फिर टाउन कमेटीज़. यानी कि कुछ शहरों में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस थी जो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर थे, कुछ शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थी, कुछ में म्यूनिसिपल कमेटीज़ थी और कुछ में टाउन कमेटीज़ थी. लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर अगर हम 2001 का डिस्कस करें ब्रीफली जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, तो उसने ये रूरल अर्बन डिवाइड जो थी वो ख़त्म हो गई और रूरल अर्बन एरियाज़ में नहीं डिवाइड किया. और अगेन तमाम मुल्क के जो एरियाज़ हैं उनको अगेन 3 टियर
डिस्ट्रिक्ट 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया, नीचे लेवल पे यूनियन काउंसिल, फिर तहसील काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यूनियन काउंसिल वाज हेडेड बाय यूनियन नाजिम, तहसील काउंसिल वाज हेडेड बाय तहसील नाजिम, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जिला नाजिम। उसमें एक और मेजर चेंज जो मुशर्रफ के 2001, जिसको डेवोल्यूशन प्लान भी कहा जाता है इसके अंदर, वो ये थी कि जो डिविजनल लेवल पे कमिश्नर्स थे, जो हर डिवीजन के कमिश्नर्स आज भी अब एग्जिस्ट करते हैं दोबारा से, जनरल मुशर्रफ के टाइम पर सारे डिविजनल कमिश्नर्स को ख़त्म कर दिया गया था। पोजीशन ऑफ डिविजनल कमिश्नर्स वर अबॉलिश्ड। तो कमिश्नरशिप का जो निज़ाम था वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पर आके सबसे बड़ा ब्लो लगा और उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर्स के ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के अंदर। सो जो डीसीज हुआ करते थे वो डीसीओ बन गए। सो डेप्यूटी कमिश्नर बिकेम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स। इसमें डेप्यूटी कमिश्नर से डीसीओ बनाते हुए जो सबसे बड़ी पावर डेप्यूटी कमिश्नर से ले ली गई वो मजिस्ट्रेसी की थी। डेप्यूटी कमिश्नर्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। तो इन अ वे दे हैड लॉ इन्फोर्समेंट या क्रिमिनल मैटर्स भी उनके अंडर आते थे। तो एरिया की, डिस्ट्रिक्ट की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी या लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मेदारी भी डेप्यूटी कमिश्नर के अंडर आता था। हेंस डेप्यूटी कमिश्नर्स यूज्ड टू बी ऑल पावरफुल इंडिविजुअल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मजिस्ट्रेसी खत्म कर दी गई 2001 में और वो अभी तक रिस्टोर नहीं की गई। सो डेप्यूटी कमिश्नर स्टॉप्ड बीइंग मजिस्ट्रेट्स और डीसीओज के पास मजिस्ट्रेसी नहीं रही। लेकिन उनको कुछ और चीज़ें ये इस तरीके से दे दी गई कि डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे, हेल्थ, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल जितने इदारे हैं, उन सब का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो था वो डीसीओ को बना दिया गया। तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का मतलब है कि सारी फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो अल्टीमेटली उसके पास आ गए। यानी तमाम फंड्स जो थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो डीसीओ सैंक्शन करता था, उसके साइन के बाद वो इशू होते थे सारे फंड्स। तो दैट वाज अ बिग पावर दैट वाज वेस्टेड विद डीसीओ। ओवर टाइम अब ये हुआ है कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में प्रिंसिपल जब ये रिवर्स किया गया सिस्टम को, जब पीपल्स पार्टी की दोबारा गवर्नमेंट आई 2008 में, तो ये वाला लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उससे ये किया गया कि कमिश्नर्स को तो रिस्टोर कर दिया गया, दोबारा डिविजनल कमिश्नर्स भी आ गए, डीसीओस को भी दोबारा डीसी बना दिया गया, डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया गया, लेकिन मजिस्ट्रेसी दोबारा से रिस्टोर नहीं की गई उनकी। लेकिन और ये वाली पावर भी उनसे ले ली गई। सो डेप्यूटी कमिश्नर्स, the current deputy commissioners are no longer district magistrates and no longer the principal accounting officers of the district. So their role is more of coordination now, even though दोबारा से डीसीओ से डीसी बनाने का मकसद ये था कि उनको दोबारा रिस्टोर्ड पावर्स दी जाएंगी जो कन्वेंशनली उनके पास हुआ करती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो कंटेम्प्रेरीली अगर बात की जाए तो करंट डीसीज डेप्यूटी कमिश्नर्स हैव लेसर पावर देन द डीसीओज अंडर लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ मुशर्रफ एंड दे हैव लेसर पावर देन द डीसीज ऑफ प्री 2001। तो ये हमारे सामने टाइमलाइन बनी। फिर 18th अमेंडमेंट आई और 18th अमेंडमेंट के बाद हमने डिस्कस किया कि हर एक का अपना लोकल गवर्नमेंट लॉ आया। अब हम उन सारे लोकल गवर्नमेंट लॉज को एक दफ़ा देख लेते हैं। केपीके का लोकल गवर्नमेंट लॉ हमने देखा 2013 में आया। उनका स्ट्रक्चर ये है कि कंटेम्प्रेरीली जो अभी ऑपरेशनल है केपीके में, इवन तो लोकल गवर्नमेंट्स अभी नहीं है, इलेक्शंस उनके नहीं हुए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसका वो ये रहा है। और अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं इस पर तो ये स्ट्रक्चर होगा कि रूरल अर्बन डिवाइड एग्जिस्ट करती है और रूरल एरियाज़ के अंदर सबसे नीचे विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल्स हैं। विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स अपना एक चेयरमैन मुंतखब करती हैं, उनके ऊपर तहसील काउंसिल है और तहसील काउंसिल के अंदर जितने चेयरमैन हैं इसके विलेज और नेबरहुड काउंसिल के, वो सारे तहसील काउंसिल के मेंबर्स हैं। बेसिकली ये डायरेक्टली इलेक्टेड टीयर है, ये टीयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और तहसील लोकल काउंसिल के ऊपर तहसील लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। तहसील लोकल गवर्नमेंट और तहसील लोकल काउंसिल ऑलमोस्ट एक टीयर ही है। ये बेसिकली ये है कि जो चेयरमैन और चेयरमैन की कैबिनेट है, यानी तहसील लोकल काउंसिल के अंदर से जो अपना एक चेयरमैन होगा वो और उसकी जो कैबिनेट है उसको तहसील लोकल गवर्नमेंट कहा गया इस एक्ट के अंदर। तो ये तकरीबन एक ही टीयर आपका बन जाता है। फिर हम अगर बात करें रूरल एरियाज में, तो ये डिवाइड इस तरीके से है कि तमाम अर्बन एरियाज में नहीं है केपी के, लेकिन जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे पेशावर डिवीजन का हेडक्वार्टर है, तो जो उस तरह वो शहर हैं जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके अंदर ये किया गया है कि थोड़ा सा नाम चेंज है। लोकल लेवल पे विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल ही है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, डायरेक्टली इलेक्ट होकर
अपने चेयरमैन उनके अंदर से मुंतखब होता है। फिर डिफरेंट विलेज या नेबरहुड काउंसिल्स के जितने चेयरमैन हैं वो सारे सिटी लोकल काउंसिल के मेंबर होते हैं, और वो उनके अंदर से फिर एक हर सिटी लोकल काउंसिल का एक मेयर इलेक्ट होता है, और ये एक ही टीयर आपका उस तरीके से बन जाता है। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 था, 2013-2019 में चेंज हो गया, तो मैं अब 2019 वाले एक्ट पे फोकस करूंगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड एक्ट 2019, ये दो एक्ट्स के जरिए लोकल गवर्नमेंट्स अब एस्टैब्लिश होंगी। अभी इनके तहत इलेक्शन नहीं हुए, बट होंगे जब, तो इन एक्ट्स के तहत होंगे, एंड इफ दे आर नॉट चेंज्ड अगेन। तो 2013 के लोकल गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही पावर्स नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट्स तकरीबन इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, लेकिन नए एक्ट के अंदर काफ़ी इंपावर करने की कोशिश की गई है पंजाब की लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स को। रूरल एरियाज़ में विलेज पंचायत होगी और विलेज पंचायत के ऊपर तहसील काउंसिल होगी। अर्बन एरियाज़ में वो उसी तरह जैसे हमें जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे स्ट्रक्चर नज़र आता है कि मेट्रोपॉलिटन नीचे विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, और वो इस एक्ट के तहत बनेंगी, और ये भी, और ये जो हैं ये इस एक्ट के तहत बनी है। तो इसमें ये आइडिया है कि सब नो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं बेसिकली, जो नो डिविजन्स के हेडक्वार्टर्स हैं पंजाब में, वो सारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगे। फिर उनके अलावा जो दूसरे शहर हैं, दूसरे अर्बन एरियाज हैं जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से ज़्यादा है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी। वो एरियाज जिनकी 2.5 लाख से आबादी कम है, उधर म्यूनिसिपल कमेटीज़ बनेंगी, और उससे भी कम आबादी है लेकिन हैं अर्बन एरियाज, वहाँ टाउन कमेटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। तो ये करंट स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट्स का पंजाब के अंदर। अगर हम सिंध लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर रूरल अर्बन डिवाइड एग्जिस्ट करती है अगेन, और वहाँ पर यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, और ये दोनों डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। पंजाब में भी ये दोनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्शंस हैं, इधर भी डायरेक्ट इलेक्शन है, इन सब में भी डायरेक्ट इलेक्शन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सिंध में, तो रूरल एरियाज़ में यूनियन काउंसिल और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तकरीबन पंजाब में आप ये देखें डिस्ट्रिक्ट टीयर एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, तहसील लेवल का टीयर एग्जिस्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट टीयर हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन द न्यू एक्ट्स फॉर द सेक ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तहसील इज द अटमोस्ट टीयर। इसी तरह सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल लेकिन एग्जिस्ट करता है, यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर यूनियन कमेटीज़ हैं, यूनियन कमेटीज़ के ऊपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिर्फ जो है वो कराची में है, और वो है आपकी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, KMC, वेरी फेमस। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं आपकी, जैसे कराची में भी एग्जिस्ट करती हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 5 DMCs हैं कराची के अंदर। उसके अलावा आपकी जो एग्जिस्ट करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो एग्जिस्ट करती है आपकी हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के अंदर। इन 3 और शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। उसके अलावा जो शहर है वहाँ पर या म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं या टाउन कमेटीज़ हैं। तो ये हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में। अब हम बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात करें जो कि सबसे पुराना है, 18th अमेंडमेंट के बाद 2010 में आया था। इसमें भी रूरल अर्बन डिवाइड है। रूरल एरियाज़ में यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, और अर्बन एरियाज़ में आप बस अगर सिंध से कंपेयर करें तो टाउन कमेटी वाला टीयर नहीं है, बाकी सब सेम है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कि अगेन हेडक्वार्टर्स में होगा कोयटा वगैरह में, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्यूनिसिपल कमेटी, और ये सारे डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। बस बलूचिस्तान में ये कि इलेक्शंस जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं। तो टेक्निकली पाकिस्तान में फिर 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ये मैंने डॉटेड लाइन इसीलिए बनाई है कि ये ऑटोनमसली ऑपरेट कर रहे हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि हम एक फेडरेशन है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस तरीके से हमारे निज़ाम में चल रहा है। कॉम्पोजिशन क्या होती है लोकल गवर्नमेंट की जनरली, या तो उसमें चेयरमैन होता है या मेयर होता है। मतलब ये मैंने सबको एक जनरली अगर कंपाउंड करूं तो एक चेयरमैन और एक मेयर होगा जो कि हेड करेगा। कुछ उसके जनरल मेंबर्स होंगे जो कि इलेक्ट होके आएंगे, इलेक्शन से आएंगे। इलेक्शन को आइदर भी डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से मुराद ये कि यूनियन काउंसिल पे आपने इलेक्ट किया है और उसके सारे चेयरमैन जो हैं फिर वो तहसील लेवल पे चले गए हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए, तो फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए। तो जनरल मेंबर्स हो गए, और कुछ रिजर्व सीट्स हैं यूथ, वेमेन, पेजेंट्स और माइनॉरिटीज़ के लिए जो कि रिजर्व की गई हैं लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, लाइक लोकल काउंसिल्स के अंदर।
दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं लोकल लेवल पर, जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, वो उनमें एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है, और बलोचिस्तान में उसका नाम local council grants committee है. This is the institution that is responsible for distribution of funds from provincial government to local government. फिर इसी तरह एक local government commission बनाती है provincial government, जिसके जरिए वो बहुत ज़्यादा monitoring, check और supervision रखती है local councils के functions के ऊपर. और provincial governments एक chief officer हर local government में अपनी एक post करता है, एक bureaucrat officer who is in the service of local government. वो भी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा authority और power है. कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, तो जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करता है, उसका काम बेसिकली ये होता है कि जिस तरीके से एनएफसी जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे डिस्बर्स करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जो कि हमने 18th अमेंडमेंट में बड़ी डिटेल में पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन का एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले के तहत ऑन पॉपुलेशन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी और एक डिज़ाइन फार्मूले के तहत फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. उसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फंड्स आगे से प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का फार्मूला डिटरमिन करता है. लेकिन आप ये देखें कि कॉम्पोजिशन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की, मैंने पंजाब की यहाँ पे मिसाल ली है कि कौन लोग डिसाइड करते हैं और किस तरह डिसाइड करते हैं. उसके अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है वो ही इज इन चार्ज, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मेंबर होता है. मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो इसका मेंबर होता है. प्रोविंशियल असेंबली के 4 मेंबर्स इसका हिस्सा होते हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट के होते हैं, 2 ऑपोजिशन के होते हैं. सेक्रेटरी फाइनेंस इसका हिस्सा होता है. सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका मेंबर होता है. प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पीएनडी का सेक्रेटरी इसका मेंबर होता है. 4 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक इनमें से खातून का होना ज़रूरी है ऑन लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस, और 4 हेड्स लोकल गवर्नमेंट्स के इसका मेंबर होते हैं. तो ओवरऑल अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी. यहाँ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर ज़्यादा है, लोकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. आप देखें सिर्फ 4 नुमाइंदे हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, बाकी जितने ज़्यादा नुमाइंदे हैं वो सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के. तो अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बहुत कंट्रोल आ जाता है कि वो कितने पैसे ट्रांसफ़र करेगी लोकल गवर्नमेंट को, और अल्टीमेटली फिर वो कम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे, और ऑटोमेटिकली पावर स्ट्रक्चर इज़ इन फेवर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. अच्छा, ये जो है ये पंजाब का नहीं है, आई थिंक दिस इज़ केपी के, मेरे से मिसप्रिंट हुआ है. उसकी लोकल गवर्नमेंट कमीशन के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो होता है, नहीं ये आई थिंक दिस इज बलूचिस्तान. यस, और ये इसका नाम लोकल गवर्नमेंट कमीशन, यस ठीक है, नहीं आई एम करेक्ट, दिस इज पंजाब. और अभी हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन पढ़ी है, जो कि ये पहला इंस्टीट्यूशन था इंपॉर्टेंट, और दूसरा इंस्टीट्यूशन है लोकल गवर्नमेंट कमीशन. अब हम पंजाब के ही लोकल गवर्नमेंट कमीशन की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे. लोकल गवर्नमेंट कमीशन बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग और इवन रिमूवल ऑफ द हेड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. तो बहुत कंट्रोल होता है लोकल गवर्नमेंट्स पे. उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर उसके अंदर होता है, 4 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली के, 2 गवर्नमेंट के, 2 ऑपोजिशन के, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीजन, और 4 एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग 1 वुमेन. तो अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा लोकल गवर्नमेंट्स में, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन है उसके पास बहुत कंट्रोल होता है लोकल गवर्नमेंट का, एंड दैट लोकल गवर्नमेंट कमीशन इज डोमिनेटेड बाय प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ये आपने ज़हन में इस चीज़ों को रजिस्टर करें, क्योंकि यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में ऑटोनमस नहीं है. इसीलिए मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में डीकॉन्सेंट्रेशन का मॉडल है, पाकिस्तान में डेवोल्यूशन का मॉडल नहीं है. अगर डेवोल्यूशन का मॉडल होता तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा होती लोकल गवर्नमेंट्स को, इतना सुपरविजन और कंट्रोल ना होता, और इतने प्रोविंशियल डोमिनेटेड ना होता वो इंस्टीट्यूशन जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करता है. फिर फंक्शंस क्या हैं.
तो लोकल गवर्नमेंट कमीशन के क्या फंक्शंस हैं, पीएफसी के फंक्शंस तो मैंने आपको बता दिए हैं कि जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसका काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, बिल्कुल उसी तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन फेडरेशन से प्रोविंसेस में करता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट्स करता है। लोकल गवर्नमेंट कमीशन के क्या फंक्शंस हैं, वो पंजाब की हद तक अगर मैंने उसके एक्ट से निकाले हैं, वो ये है कि रिव्यू एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लोकल एरियाज, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन वन और मोर लोकल गवर्नमेंट्स और बिटवीन लोकल गवर्नमेंट्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, inquiries into the matter referred to it by the provincial government or such other matters concerning a local government as are required under this act or considered important by the commission, coordination on key issues referred to it by the provincial government, advise the provincial government on general aspects concerning local governments or any particular aspect concerning one or more local governments if so requested by the provincial government. अच्छा ये पढ़िए, if so requested by the government, the head of the local government or the chief office, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है लोकल गवर्नमेंट कमीशन की लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, और वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन अगेन इज डोमिनेटेड बाय प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस एंड प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी। फिर एक चीफ ऑफिसर भी अपॉइंट होता है हर लोकल गवर्नमेंट के अंदर। चीफ ऑफिसर जो है वो ब्यूरोक्रेट होता है और वो लोकल गवर्नमेंट की सर्विस में होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। और अगर हम ये देखें, अगर आप अभी ये देखें पढ़े मेरे साथ से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कंट्रोल है प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेट्स का या प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी का एंड अल्टीमेटली बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। A chief officer shall be the principal officer of the local government and all other officers and servants of the local government shall be subordinate to him. He shall work as the principal accounting officer for the local government. तो सारे चेक, सारे पैसे इसके दस्तखत से रिलीज होंगे। He assist and advise the head of the local government, convener and committees and subcommittees of the council in proper discharge of their duties. Ensure timely, effective and efficient implementation of local government policy and decisions. He supervise and control officers and servants of local government and coordinate and synergize the work of all offices of the local government. He maintains financial and administrative discipline and ensure that the business of the local government is carried out strictly in accordance with the provisions of this act, any local government act, and other laws for the time being in force. Enter into and manage all contracts on behalf of the local government. Undertake all procurements on behalf of the local government. Maintain records pertaining to the functions of local government. Act for and on behalf of the local government in every action or other legal proceedings whether instituted by or against the local government. कि अगर कोई केस चल रहा है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर तो उसको भी represent वो करेगा. Assist relevant authorities in the circumstances of emergency. Perform any other duty which can be assigned to him by the provincial government, head of the local government, council committee और सब कमेटी. यानी ये सारे फंक्शंस इतने ज़्यादा चीफ ऑफिसर परफॉर्म करेगा तो लोकल गवर्नमेंट्स के पास कहाँ कितनी ऑटोनॉमी रहेगी. तो ये हमने पूरी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की. इनमें से जो बातें आपको स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट अगर याद रहते हैं और अगर आप पेपर में ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर्स बना के दिखा सकते हैं, इवोल्यूशन स्ट्रक्चर, या अगर सवाल पे डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चारों सूबों का क्या है वो ड्रॉ कर सकते हैं. थोड़ा सा आप लोकल गवर्नमेंट कमीशन पे, मैंने तो बहुत डिटेल में जैसे पावर्स ऑफ चीफ ऑफिसर लिखी हैं, आप ब्रॉडली लिख दें कि उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, 3-4 फिक्रे इसमें से लिखते हैं लोकल गवर्नमेंट कमीशन पे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे. तो जनरली लोग इतनी डेप्थ में ना एक्ट्स पढ़ते हैं ना इसको एनालाइज करते हैं, बट आपको एक चीज़ मिल रही है बड़ी ईजीली, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और उसको यूज़ करें to show examiner that you know a lot of things, these things in detail. So I hope this lecture would have helped you understand the history and structure of the local government. In the next we're going to discuss the reasons why they don't there have been repeated failures of them in Pakistan. Guys, welcome back, and this is the last of the lectures on the local government system in which we're going to discuss the issues of the local government system in Pakistan. और जिस तरीके से हमने पास पेपर डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस कर ली, हमने स्ट्रक्चर और हिस्ट्री भी एडिशनली कवर कर ली, और आपके जहन में कुछ अब आइडियाज़ बन गए होंगे कि क्या मसाइल रहे हैं हिस्टोरिकली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के. आपको कुछ बड़ी स्पेसिफिक चीज़ों की मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी थी पिछले लेक्चर के अंदर, लोकल गवर्नमेंट कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और कैसे रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नमेंट्स की कम है और प्रोविंशियल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है. तो वो उसका आपको थोड़ा आइडिया हो गया, आपको मैंने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी बताए हैं. अब आपके लिए ये चीज़ें डिस्कस करना आसान होगा कि रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर्स क्या हैं. तो इनको मैंने क्रिस्टलाइज किया है कुछ पॉइंट्स की शक्ल में. स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान में, कि कुछ परसिस्टेंट इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल, वो डिस्कस करेंगे. फिर जो मुख्तलिफ रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स हैं जो करंटली ऑपरेशनल है डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर,
उन एक्ट्स के अंदर क्या मसाइल हैं, उन लॉज के अंदर बेसिकली क्या मसाइल हैं। तो एक इलेक्टोरल सिस्टम का मसला है कुछ एक्ट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मसला है, प्रोविंशियल सुपरविजन और कंट्रोल का है, कैपेसिटी का है, और प्रैक्टिकल कुछ रियलिटीज़ हैं। थोड़ा सा हम कराची की केस स्टडी को इसमें डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज लोकल गवर्नमेंट्स के क्या हैं। पहले तो ये कि हिस्टोरिकली लोकल गवर्नमेंट्स जो थी वो इंस्टीट्यूट हुई मिलिट्री रूल के अंदर, एंड मिलिट्री रूल के अंडर उनको इसलिए इशू किया गया था, हर मिलिट्री डिक्टेटर ने इसीलिए इंस्टिगेट की थी लोकल गवर्नमेंट्स टू गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ लेजिटिमेसी टू देम, बिकॉज ये लोग डायरेक्टली खुद तो इलेक्ट होकर आते नहीं थे, तो चूंकि इलेक्शंस के जरिए नहीं आते थे तो एक इलेक्टोरल लेजिटिमेसी नहीं थी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी। तो अपने ऑफिस को इलेक्टोरल लेजिटिमेसी देने के लिए फिर लोकल गवर्नमेंट्स कहते थे कि हम आपको बेसिक लेवल पर डेमोक्रेसी दे रहे हैं। और जनरल अयूब खान के टाइम पर तो जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे वही बेसिक डेमोक्रेट्स ने फिर उसके बाद वो इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करते थे कॉन्स्टिट्यूट, एंड दोज 85,000 बेसिक डेमोक्रेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वुड इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और जनरल अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जब इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके अंदर यही था कि बेसिक डेमोक्रेट्स ने बेसिकली आगे से फिर वोट देने थे आइदर ऑफ द टू। तो जनरल अयूब खान के टाइम पे जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिस्टम क्रिएट किया गया लोकल गवर्नमेंट लेवल पे। उस लोकल गवर्नमेंट के लोगों ने फिर अयूब खान को ज़्यादा वोट दिया और मुहतरमा फातिमा जिन्ना को नहीं दिया और अयूब खान को जितवाया। तो खैर उसके काफ़ी ज़्यादा और भी criticisms हैं कि why that happened and how that happened, but anyways it was not technically from democratic sense के तहत नहीं ये काम किया जाता रहा। This was used as a tool to give a false sense of legitimacy to illegitimate military rules. देन लोकल गवर्नमेंट जो मिलिट्री रूल के अंडर आए वो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते थे, गैर जमाती इंतखाबात कराए जाते थे, पार्टी बेस्ड इलेक्शंस नहीं करवाए जाते थे। अगेन क्यों, अगर पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाए जाते तो उनको यही फियर था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्ट्रांग होंगी और वो लोकल लेवल पे फिर इलेक्शन जीत के आएंगी। तो जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के टाइम पर नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस करवाए जाते थे लोकल काउंसिल्स के। और ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि अगर आप पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं करवा रहे तो आप पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई बुरा लफ्ज तो नहीं है, इट्स नॉट अ पेजॉरेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है लोकल लेवल पर। तो जितने इलेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टी बेसिस पर होंगे लोकल लेवल पर, पार्टीज ग्रास रूट्स पर उतना कनेक्टेड होंगी अवाम के साथ। और अगेन वो वाला सारा हमारा आइडिया कि कैसे फिर लोअर लेवल से पॉलिटिशियंस को मौका मिलता है कि वो टॉप लेवल पर आए। Then institutional conservatism at provincial level to retain control of local institutions. एक institutional conservatism का doctrine है कि institutions अपने आप को conserve रखने की कोशिश करते हैं, basically status को अपने आप को maintain रखने की कोशिश करता है। और वो हमें नज़र आता है इस तरीके से कि जब फेडरल गवर्नमेंट पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स डिवॉल्व नहीं करती थी 18th अमेंडमेंट से पहले, फिर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की स्ट्रगल रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर ना देने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान रहा। अल्टीमेटली कंसेंसस बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ, 18th अमेंडमेंट आई और उसके तहत फिर प्रोविंशियल लेवल पर, सूबाई सतह पर पावर्स को तकसीम किया गया। लेकिन अब वो वाला चीज़ एक नया स्टेटस को बन गया है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये नहीं चाहती कि लोकल लेवल पे पावर्स को डिवॉल्व करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्रोविंशियल लेवल पर पावर को डिवॉल्व करें, बिकॉज एवरीबडी ट्राइज टू जस्ट होल्ड ऑन टू देयर ओन पावर सेंटर्स। तो उस कंजर्वेटिज्म की वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिटेन किया हुआ कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट्स का, और लोकल गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए हम डीकॉन्सेंट्रेशन वाले मॉडल पे फंसे हुए हैं, डेवोल्यूशन पे नहीं जा सके। फिर ये है कि प्रोविंशियल लेवल पर और लोकल लेवल पर एक इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि कराची की अगर मिसाल देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की है, और लोकल गवर्नमेंट्स में ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो वहाँ पर MQM की है। और चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दो डिफरेंट जमातों की है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत होने दे, क्योंकि अगर वो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत होने देंगे तो इसका मतलब है कि वो एक और किसी और पार्टी को पावर ज़्यादा दे रहे हैं, वो किसी और पार्टी को अथॉरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, वो किसी और पार्टी को फंड ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए जो आप अक्सर TV पे देखते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, इसमें एक टसल रहती है। तो सिंध के कॉन्टेक्स्ट में और कराची के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी रेलिवेंट चीज़ है। फिर पार्टी के अंदर देयर इज़ एन इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट टू कंट्रोल रिसोर्सेज। आप ये देखें कि टेक्निकली MNA और MPAs जो हैं वो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके जो मेयर्स हैं और कुछ इलाकों के चेयरमैन बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस लाहौर का मेयर और कराची का मेयर और इस्लामाबाद का मेयर, ये दे रिप्रेजेंट द होल सिटी। लेकिन लाहौर के अंदर कितने ज़्यादा MNAs हैं, कराची के अंदर कितने ज़्यादा MNAs और MPAs हैं। तो MNAs और MPAs कम लोगों को बाय पॉपुलेशन
नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कम लोगों से वोट लेकर आते हैं। जो लोकल काउंसिल्स के मेयर्स और चेयरमैन होते हैं वो अमूमी तौर पर ज़्यादा लोगों को वोट लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद एमएनएज और एमपीएज की कोशिश होती है क्योंकि कि वो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो अपने पास रखें और वो खुद जो हैं कंट्रोल रखें पॉलिटिक्स के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। तो एमएनएज और एमपीएस भी सियासी जमातों के नहीं चाहते कि ये जो पावर है वो लोकल लेवल पर डिसॉल्व हो और जो मेयर्स और उन्हीं के पार्टी के मेयर और चेयरमैन के पास वो पावर्स जाएं। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन, इसीलिए प्रोविंशियल लेवल पे एमपीएस का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसे एक्ट्स पास करें लोकल गवर्नमेंट्स के कि जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ज़्यादा मिलेंगी तो एमपीए एमएनएस के पास पावर कम होगी और चेयरमैन और मेयर्स के पास पावर ज़्यादा होगी, विच आइडियली शुड बी द केस बिकॉज अक्सर मेयर्स और चेयरमैन ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर स्पेसिफिकली अगर हम बड़ी स्पेसिफिक मसाइल इसमें कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जनरल नहीं बट बहुत डायरेक्टली रेलिवेंट विद व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्रास रूट्स। लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के साथ क्या मसाइल हैं, उसमें सबसे पहला इलेक्टोरल सिस्टम के साथ। बलूचिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं वो भी नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। फिर अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी पोजीशंस है जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता हेड्स का या काउंसिल्स का। जैसे कि सिंध में जितने हेड्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, यानी जो आपका मेयर है कराची का वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया पूरी कराची की आवाम ने, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं नीचे से यूनियन कमेटीज से। वो यूनियन कमेटी से किसी डीएमसी में इलेक्ट हुआ होगा एज अ चेयरमैन, फिर किसी डीएमसी के अंदर से फिर इलेक्ट होकर केएमसी में आया होगा। सो हेड्स जो हैं वो सिंध में अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट के हैं वो सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, डायरेक्टली पूरा शहर या पूरी कंस्टिट्यूंसी उनको वोट नहीं करती, विच आइडियली शुड बी द केस लाइक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। केपीके में जो काउंसिल्स हैं वो सारी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। आपको याद होगा जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, और स्ट्रक्चर आप इसके साथ दोबारा टैली कर सकते हैं अगर आपने वो नोट किया हुआ है अपने नोट्स में, कि लोकल जो विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, उनके जो आप सारे चेयरमैन हैं वो ऑटोमेटिकली फिर तहसील काउंसिल्स के मेंबर बन जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो तहसील काउंसिल्स हैं केपीके में वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गई। पंजाब में जो हैं 2013 के एक्ट के अंदर ऐसा था कि काउंसिल्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और हेड्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अब 2019 में उसे डायरेक्टली इलेक्टेड कर दिया गया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट, लेकिन उस पर अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए, सो वी सी हाउ दैट प्लेज आउट। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है रिजर्व सीट्स पे। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम रिजर्व सीट्स पे होने का मतलब ये है कि ये अब सिर्फ पंजाब में किया गया है, ओनली इन पंजाब जो नया एक्ट आया है। जिस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों का डिमांड थी इंडिपेंडेंस से पहले कि जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं या मुसलमानों के रिलेटेड सीट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ मुसलमान सेपरेट वोट करें, ठीक है, ताकि मुसलमानों को सेपरेट सीट मिले। तो आइडिया ये है कि आपने वेमेन माइनॉरिटीज़ की सीट्स क्रिएट कर दी, और यानी कि अगर टोटल एक पार्टी ने 33% सीट्स जीती हैं, एक पार्टी ने 66% सीट्स जीती हैं, तो वुमेन और माइनॉरिटीज़ की जितनी सीट्स होंगी उन सीट्स का 66% जो है वो इस पार्टी बी को चला जाएगा, और उस माइनॉरिटीज़ की 33% सीट्स जो हैं वो पार्टी ए को चला जाएगा, और वो किसी को भी फिर वहाँ पर किसी भी माइनॉरिटी को वहाँ अपॉइंट कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है रिजर्व सीट्स पे, जबकि इसकी बजाय होना ये चाहिए कि माइनॉरिटीज़ की सीट्स पे भी इलेक्शंस होने चाहिए, रिजर्व नहीं होनी चाहिए, और उस पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ कंटेस्ट करें और सिर्फ माइनॉरिटीज़ उस पर वोट करें, बिल्कुल जैसे कि हमारा डिमांड थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो ताकि माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ वो भी एक इलेक्शन प्रोसेस से आए अपनी कंस्टिट्यूंसी से लड़के। विमेन कंस्टिट्यूंसी सीट्स भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ ख्वातीन उसमें वोट करें, या दूसरे पेजेंट्स की जो सीट्स हैं या यूथ की जो सीट्स हैं उसमें वो वोट करें, ताकि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में सबसे कॉम्पिटेंट लोग हों, अपने कंस्टिट्यूंसी में सबसे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हों। ऐसा ना हो कि पार्टी बॉसेस जिसको चाहें फिर वहाँ पर वो बस रिजर्व सीट जो है वो ग्रांट करते हैं। तो ये मसला है। देन देयर इश्यूज विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको अभी समझाया था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कितना मसला है, उसमें सारे के सारे पंजाब और केपीके के अंदर टोटल 13 मेंबर्स हैं, और उन 13 में से 4 मेंबर सिर्फ
लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके अंदर, बाकी सारे प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और मेजॉरिटी से सारा डिसीजन होना है। तो इसका मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो है वो फैसले कर सकती है कि कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना नहीं, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है। अगर 13 में से सिर्फ 4 मेंबर लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आ रहे हैं और बाकी जो आपके 9 नुमाइंदे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी से फैसले होंगे। इसी तरह केपीके में टोटल 12 में से सिर्फ 5 लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, बाकी सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैं। और बलूचिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसिल ग्रांट्स कमेटी है, उसके अंदर तो लोकल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है, सारा का सारा डिसीजन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। तो पीएफसी जब डोमिनेट प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स की वजह से होती है, तो फिर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो फिर लोकल गवर्नमेंट्स की फेवर में नहीं बनता। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की फिर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अपने पास रखें और कम से कम फंड्स जो है लोकल गवर्नमेंट्स को दें, क्योंकि स्ट्रक्चरल एक मसला है कि आपने कंपोजिशन ऐसी डिज़ाइन की। दूसरा, कोई गारंटीड एंटाइटलमेंट नहीं है। आपको याद है कि एनएफसी अवार्ड के अंदर गारंटीड एंटाइटलमेंट है कि 57.5% तो प्रोविंसेस को मिलना ही मिलना है टोटल शेयर का। इसे कहते हैं गारंटीड एंटाइटलमेंट, कि जो मर्जी हो जाए 57.5% ऑफ द टोटल जो नेशनल वो जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका 57.5% हर सूरत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करना है। इसी तरीके से 2 सूबों के अंदर लोकल लेवल पे गारंटीड एंटाइटलमेंट नहीं है। पंजाब में पहले बिल्कुल नहीं थी, 2013 के एक्ट में नो गारंटीड एंटाइटलमेंट इन पंजाब। अब जो 2019 का एक्ट आया है उसके अंदर ये है कि 26 से 28% एटलीस्ट जो प्रोविंस का टोटल फंड है, प्रोविंस का टोटल बजट है, उसका 26 से 28% तो लोकल गवर्नमेंट्स की सारी पंजाब की एटलीस्ट जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 100% जो प्रोविंस का कंसोलिडेटेड फंड बना उसके अंदर से 26 से 28% जितनी टोटल लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान जाएगा। ऑब्वियसली फिर उनके दरमियान क्या डिवीजन होती है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग, बट एटलीस्ट टोटल प्रोविंस का 26 से 28% लाजमी उनको जाएगा। लेकिन अभी तक अगेन ये ऑपरेशनल नहीं हुआ, इसके तहत इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये अभी तक फोर्स में नहीं आया। और केपीके में ये है कि जो डेवलपमेंट बजट से रिलेटेड है कि प्रोविंस का जो टोटल बजट नहीं, प्रोविंस का जो टोटल डेवलपमेंट बजट है उसका 30% एटलीस्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को एज ए डेवलपमेंट बजट के तौर पर जाएगा। तो इन 2 एक्ट्स के अंदर हमें अब गारंटीड एंटाइटलमेंट मिलती है। लेकिन पंजाब वाला तो अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं हुआ क्योंकि इसके तहत अभी तक इलेक्शंस ही नहीं हुए। तो अभी तक जो पंजाब में सिस्टम था उसकी कोई गारंटीड एंटाइटलमेंट नहीं थी, सिंध में कोई नहीं है, बलूचिस्तान में कोई नहीं है। ऑटोमेटिकली इन 2 चीज़ों की वजह से फंड्स कम मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। फिर जो बजटरी प्रोसेस है वो बड़ा अनडेमोक्रेटिक है इन लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के अंदर। अगर इनके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर लोकल काउंसिल्स फेल टू पास देयर ओन बजट विद सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर उनका बजट लोकल गवर्नमेंट कमीशन के पास चला जाएगा और लोकल गवर्नमेंट कमीशन उनका बजट पास करेगी और डिसाइड करेगी। अब आप ये हिसाब लगाएं, अगर प्रोविंशियल असेंबली का बजट फेल कर जाए, यानी वो सिंपल मेजॉरिटी से पास ना हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि फिर फेडरल गवर्नमेंट बजट बनाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही दोबारा से बजट में जो भी वो पास नहीं हुआ, इसका मतलब कि उस पर कंसेंसस नहीं था, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको चेंज करेंगे और दोबारा फिर उस पर लेजिस्लेशन होगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही उसको पास करेगी। ठीक है, क्योंकि ये उसका बजट है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट लेवल पर यह है कि अगर लोकल काउंसिल अपना बजट एक दफा भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करने में नाकाम हो जाती है तो लोकल गवर्नमेंट्स कहती हैं भाई आपसे नहीं होता काम, ये हम करेंगे। और लोकल गवर्नमेंट कमीशन अगेन इज डोमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो उनका बजट पे भी इनडायरेक्टली कंट्रोल आ जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। बलूचिस्तान में तो बहुत मुश्किल बजट पास करने का प्रोसेस है, 3 कम्बरसम स्टेजेस हैं, मैंने डिटेल नहीं यहाँ पर लिखी, लेकिन जस्ट एज रेफरेंस के मुश्किल प्रोसेस है बजट पास करने का। फिर इश्यूज विद सुपरविजन एंड कंट्रोल, बहुत ज़्यादा ओवर सुपरविजन एंड कंट्रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, ओन सोर्स रेवेन्यू नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। दे आर नॉट फाइनेंशियली ऑटोनोमस, दे नॉट ऑटोनोमस इन मैनेजमेंट, दे नॉट ऑटोनोमस इन डिसीजन मेकिंग। इसीलिए मैंने कहा था कि डी कॉन्सेंट्रेशन के मॉडल पे हम फंसे हुए हैं, हम डेवोल्यूशन पे नहीं जा सके क्योंकि बहुत कंट्रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। किस तरह होता है, मैंने आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट कमीशन डायरेक्टली उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं लोकल काउंसिल पे, और लोकल गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल इदारा है। तो जब एक प्रोविंशियल इदारे की और बॉडी की रिकमेंडेशंस और डायरेक्शंस आप पे बाइंडिंग हो गई तो आप ऑटोनमस तो ना रहे। फिर
इसी तरह चीफ ऑफिसर अपॉइंट होता है पंजाब और सिंध में, जिसकी मैंने आपको इतनी ज़्यादा पावर्स गिनवाई थी, तो वो तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है लोकल गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस को। इसमें आपने थोड़े से इसको सब्सटैंशिएट करना है इन सारे पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी। और उसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में जो चीफ ऑफिसर और लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस आपको बताए थे उसके इसके नीचे उनको सब्सटैंशिएट करें, वो वाला लेक्चर इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ताकि आपकी उस समय मैंने बेस बनाई थी और उसमें वो वाला कंटेंट और नॉलेज आपने इसके अंदर यूज़ करना है, स्पेसिफिक इंस्टेंसेज और स्पेसिफिक बातें लिखनी है जो हमने उसमें डिस्कस की थी। ये एक नई चीज़ है कि लोकल गवर्नमेंट्स का जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर जो है, यानी किसी भी यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसका जो चेयरमैन है या मेयर है उसको चीफ मिनिस्टर सस्पेंड कर सकता है। ऑब्वियसली उसका एक लीगल प्रोसीजर है, एक ड्यू प्रोसेस है कि वो किस तरीके से पहले कंप्लेंट जाएगी, वो लोकल काउंसिल में पास हो सकता है नो कॉन्फिडेंस वोट, या वो लोकल कमीशन के पास जाता है। बट एनीवेज एक अल्टीमेटली एक पावर स्टिल रिजर्व्ड है विद सीएम, और द डेमोक्लिस स्वॉर्ड कैन हैंग ओवर द लोकल हेड्स। तो फिर वो ऑटोनमस ना हुए कि जब सीएम के पास ये पावर है कि वो उसको हटा सकता है। अब आप यही सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर हो कि वो चीफ मिनिस्टर को हटा सकता हो किसी भी सूबे के, चाहे वो उसकी पार्टी का है या नहीं है, तो ये कितनी ज्यादती वाली बात होगी। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स पास करती है, लोकल गवर्नमेंट जो कानून साजी करती है लोकल काउंसिल्स के अंदर, उसको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है अगर उसको लगे कि ये डायरेक्शंस ऑफ पॉलिसी के खिलाफ है। तो इतना ज़्यादा टाइट कंट्रोल है, तो लोकल गवर्नमेंट्स बेचारी बहुत डिसफंक्शनल रहती हैं। एक मसला इन सारी चीज़ों का एक नेचुरल आउटकम ये रहा कि चूंकि आपने कभी ऑटोनॉमी ही नहीं दी, जिम्मेदारी ही नहीं दी, उनको ग्रो ही नहीं करने दिया, खुद कंट्रोल रखा, तो ऑटोमेटिकली फिर उनकी कैपेसिटी भी कम थी, वो फिर उस तरीके से ग्रो भी नहीं कर सके। उनका स्किल सेट पॉलिटिकल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लीगल मैनेजमेंट में उनका अपना स्किल सेट भी उतना अच्छा नहीं डेवलप हो सका। They are not well trained in either politics or governance. They do not exercise the given powers. कभी कभी ये है कि जो पावर्स उनको ऑलरेडी दी भी हुई हैं लॉ ने, कि उनके पास जोनिंग की पावर होती हैं, कुछ टैक्सेशन की पावर्स होती हैं, म्यूनिसिपल सर्विस की पावर्स होती हैं, तो वो उसको एडिक्वेटली इस्तेमाल नहीं कर पाती लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये उनकी कैपेसिटी वीक है, उनके पास इतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं है, इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है, इतने अच्छे टेक्नोक्रेट्स नहीं हैं कि उनके पास मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल किए जा सकें। कि अब लोकल लेवल पे अगर आपने जोनिंग करनी है तो आपके पास जीआईएस स्पेशलिस्ट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट मौजूद होने चाहिए जो कैडेस्ट्रल मैपिंग कर सकें। अब इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जोनिंग के लिए जनरेटिव डिज़ाइंस आपको बनाने आनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, ये सारे लोग चाहिए, स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए, वो अक्सर उनके पास नहीं होते, एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स नहीं होते। तो लोकल गवर्नमेंट की इसलिए कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड है। और कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं कि रिसोर्सेज उन्हें कम दिए जाते हैं, अक्सर पॉलिटिकल राइवलरी होती है पार्टीज़ की। अगेन वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि प्रोविंस में गवर्नमेंट डिफरेंट होती है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट डिफरेंट होती है। अक्सर जुरिस्डिक्शनल क्लैशेस होते हैं कि ये किस या ये लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर आता है एरिया, या ये प्रोविंशियल के अंडर आता है, या ये फेडरल गवर्नमेंट के आता है, या ये ऑटोनमस बॉडी के अंडर आता है। तो जुरिस्डिक्शनल क्लैशेस अक्सर आते हैं प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में। फिर एक मसला ये कि लोकल गवर्नमेंट लॉज इतनी दफ़ा चेंज हुए हैं। आप देखें, हमने इसमें आप एग्जांपल दें कि पहले BDO 59 आया, फिर 79 आया, फिर 2001 का आया, फिर 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में अब तक 2 आ चुके हैं, 2013 में आया, 19 में आया, और इसमें फिर अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी तो ये तो मैंने कंप्लीट न्यू एक्ट्स की बात की है ना, कि कंप्लीट पुराना एक्ट को साइड करके एक नया कंप्लीट लॉ ले आया जाता है। उस पुराने लॉ में भी फिर बहुत अमेंडमेंट्स की जाती हैं। KPK का जो एक्ट है वो पता नहीं कितनी दफ़ा अमेंड हो चुका है। तो एक चीज़ में जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो वो पीपल आर जस्ट हैव टू जस्ट कीप गोइंग विद एवर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती, सिस्टम ग्रो नहीं कर पाता। फिर देयर इज़ एन इनस्टेबल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट विज़ावी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर, उनके साथ भी एक कॉन्स्टेंटली कभी कभार एक कोई मैकेनिज्म नहीं है कोऑर्डिनेशन का, कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑटोनमसली अपना एक काम कर रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, और दोनों की जिम्मेदारी है। तो दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एंटी इंक्रोचमेंट कर रही होती है, लोकल गवर्नमेंट्स भी एंटी इंक्रोचमेंट कर रही होती हैं। दे डू कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली उनका वो होता है, लेकिन कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे कराची के हवाले से, कुछ जो बजट्स के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से ये 2 लिंक्स हैं, आप इनको लाजमी देखें।
सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप गूगल पे पेस्ट करें। इसके अंदर एक आपको वीडियो भी मिलेगी जो सिर्फ आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। वो बेसिकली आपको बताएगी कि कराची के केएमसी के बजट्स हिस्टोरिकली कैसे ऊपर नीचे होते रहे विद पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस, कि जब जब सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी होती थी और लोकल में भी होती थी तो फिर उनके बजट ज़्यादा होते थे, और जब डिफरेंट की होती तो बजट्स कम होते थे। तो उससे आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिक एग्जांपल्स और फिगर्स मिलेंगी, मेयर्स के नाम मिलेंगे, किस टाइम पे कितना हुआ, किसकी गवर्नमेंट में कितना, वो कोट करेंगे तो आपको का ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट होगा। कराची की केस स्टडी की बात की जाए तो वही बात, रिसोर्सेज कम है, एक पॉलिटिकल राइवलरी एग्जिस्ट करती है, तीनों पार्टियां, तीन जो मेन पार्टीज हैं कराची की, वो तीनों डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट पे हैं। एक पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल, एमक्यूएम लोकल में। तो तीनों का आपस में रिसोर्सेज का क्लैश रहता है। फिर कराची में जुरिस्डिक्शनल क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। आधे से ज़्यादा जो लैंड है, लैंड का कंट्रोल जो है वो फेडरल एजेंसीज के पास है, जैसे कराची पोर्ट ट्रस्ट, सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवेज, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, डीएचए, उनके पास है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो, कुछ कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट्स के पास है, जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। और कुछ जो है दूसरे जो इदारे हैं प्रोविंशियल, उनके पास है, जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए और सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये दोनों प्रोविंशियल लेवल पर हैं। तो ये फेडरल लेवल है, सारे फेडरल इदारे हैं, ये दोनों प्रोविंशियल हैं, और ये सिर्फ जो है वो लोकल है। तो इतना जुरिस्डिक्शन का क्लैश है। और आपको रिसेंट फ्लडिंग जो हुई है कराची में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अंदाज़ा भी होता होगा कि इसमें बहुत डिबेट हुई है कि कैसे बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जो कुछ केएमसी की जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं, डीएमसी में भी आते हैं, कैंटोनमेंट के भी आते हैं, केपीटी के भी आते हैं। तो वो जुरिस्डिक्शन भी क्लियर नहीं है कि इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नन, जो डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है साइकोलॉजी के अंदर। तो आपने कोई एक क्लियर कट लाइंस ऑफ अथॉरिटी नहीं है। देयर आर इनस्टेबल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अगेन विज़ावी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर ये कि जब लोकल गवर्नमेंट्स अबॉलिश होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ज़्यादा अमूमी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगा दिया जाता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो डीएमसी का चेयरमैन फंक्शंस परफॉर्म करता था, वो चेयरमैन का रोल फिर डेप्यूटी कमिश्नर परफॉर्म करता है जब चेयरमैन एग्जिस्ट ना करता हो, जब लोकल गवर्नमेंट से अबॉलिश हो जाए। तो पाकिस्तान में इस टाइम पूरे मुल्क में चूँकि लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है वो सब जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, ही वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने इसको बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। सिग्निफिकेंस में हमने प्रिंसिपल्स और उसके एडवांटेजेस आपने लिखने हैं। रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर से पहले आपने बताना है कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है, वो 3-4 चार्ट्स बना दें। और रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर में ये वाला पूरा लेक्चर आ जाएगा, और इसकी सब पॉइंट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लें पिछले लेक्चर से स्पेसिफिकली। सो दिस वुड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ऑल द लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड इशूज़ एंड लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड literature that you guys need to be abreast with very specific examples, very specific case studies, very updated examples as well, which will hopefully help you guys get very good score if any question regarding local government comes.